تاکہ اسی کے مار کھانے سے ہم تازگی زندگی اور صحت مند راستے کو صحیح تعلیم کریں جس سے لوگ یہاں موجود ہیں سب تبدیل کر سکیں اپنے مذہب سے اپنے رہن سے معلوم کر ان سب کچھ معلوم اس کی طرح آمین. اچھا ہم تھوڑی دیر کے لیے مقدس مسیح اصول کی انجیل ہے اور اس کا یہ 11واں باب ہے اور اس کی 28ویں آیت ہے اور یہاں لکھا ہوا ہے اے میرے دکھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا. انسان اس دنیا میں جب اس دنیا میں وہ آتا ہے اور اس دنیا میں رہتا ہے اور اس کا جب وجود ہوتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اس کو سمجھ آتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کن مشکلات میں سے گزر رہا ہے. ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں بہت سارے ہمیں کام کرنے پڑتے ہیں دن رات انسان کام کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کی زندگی میں سکون اور چین اور اچھے طور سے اس کی زندگی گزر سکے. اور انسان کی ہمیشہ سے جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کی ہمیشہ سے یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ بڑے آرام سے اور بڑے اطمینان سے اور بڑے سکون کے ساتھ اور بڑی تسلی کے ساتھ وہ زندگی جو ہے وہ گزارے. اور وہ چاہتا ہے کہ میں نہ صرف میری زندگی بلکہ میرے خاندان میں اور میرے عزیزوں میں میرے بچوں میں میرے والدین میں یہ زندگی جو ہے یہ محبت جو ہے یہ رحم جو ہے یہ فضل جو ہے یہ جو خدا کا خاص رحم ہے وہ ضرور نظر آنا چاہیے اور ہماری زندگی پر سکون ہونا چاہیے. اور انسان اس کام کے لیے اپنی زندگی کو آرام دہ کرنے کے لیے کام کرتا ہے دن رات کام کرتا ہے اور وہ ان سفروں میں سے اپنے آپ کو گزارتا ہے تاکہ کسی طرح سے میری زندگی میں آرام آئے اور زندگی میں سکون آ جائے. لیکن مشکل ہے کہ وہ بڑھتی جاتی ہے ایک مشکل ختم ہوتی ہے تو دوسری پریشانی آ جاتی ہے تیسری پریشانی آ جاتی ہے. انسان اسی طرح سفر جو ہے وہ کرتا جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں سکون اور مشکلیں کم ہو جائیں زندگی پریشانی سے دکھوں سے تھوڑا کم ہو جائے اور میں تھوڑی سی جو ہے وہ سکون حاصل کر سکوں. آج شام جو گڈ نیوز ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح جو اس دنیا کا نجات دہندہ ہے جو اس دنیا کا بنانے والا ہے جو قادر مطلق ہے جو الوہیم ہے جو سلطان السلاطین ہے جو قادر مطلق ہے وہ اس دنیا میں جب آیا اور اس کے آنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ انسان کو سکون اور چین دے سکے انسان کو خدا کے پاس لا سکے خدا کی محبت میں اس کے رابطے کو بحال کر سکے اور خدا اور انسان کی جو جدائی ہو چکی تھی اس کو ملا سکے اور اس جدائی کو ختم جب ہو جائے گی تو انسان کی زندگی میں سکون آ جائے گا. اور کلام مقدس میں ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کا بیٹا دنیا میں اسی لیے آیا تاکہ مجھے اور آپ کو وہ سکون اور چین دے سکے. اسی لیے مسیح خداوند نے علانیہ یہ نعرہ لگایا یہ دعوت دی ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا میں تمہیں سکون دوں گا میں تمہیں تسلی دوں گا اور تمہیں کہیں بھی تسلی اور سکون نہیں مل سکتا جس طرح خداوند مسیح دیتا ہے. مسیح خداوند نے کہا جس طرح دنیا اطمینان دیتی ہے میں تمہیں اس طرح کا اطمینان نہیں دوں گا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں تاکہ تم اس دنیا میں جو ہے وہ زندگی گزار سکو. یہ دعوت جو ہے عالمگیر دعوت ہے یہ خدا نے پوری دنیا کو انوائٹ کیا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے جو ایمان رکھتا ہے کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے جو ایمان رکھتا ہے کہ یسوع مسیح میرا چھڑانے والا ہے وہ آسمان سے آیا ہے خدا کا روح اس کے اندر ہے وہ خدا ہے وہ قادر مطلق ہے وہ الوہیم ہے وہ اس کے اندر اطمینان کے چشمے بہنا شروع ہو جائیں گے. اور اسی لیے کلام مقدس میں فرماتا ہے کہ مسیح خداوند نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں زندگی کا پانی میں ہوں اور پھر مسیح خداوند نے کہا راہ حق زندگی میں ہوں جو میرے پاس آئے گا اس کو میں اپنا اطمینان بخشوں گا اور اپنی تسلی دوں گا. مسیح خداوند نے کہا کہ دروازہ میں ہوں جو مجھ سے داخل ہوتا ہے وہ آرام پاتا ہے جو مجھ سے داخل ہوتا ہے وہ سکون پاتا ہے. آرام سکون تسلی مسرت شادمانی یسوع کے ساتھ ہے یسوع کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے. اور مقدس یوحنا انجیل مقدس میں فرماتا ہے کہ مسیح خداوند نے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں ہو. خدا کے بغیر انسان کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر یسوع آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کی زندگی کھوکھلی ہے نہ صرف یہاں پر بھی بلکہ آسمان پر بھی آپ کی زندگی کھوکھلی ہے. اور جس کے پاس
खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है। यूहन्ना रसूल कहता है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास हमेशा की जिंदगी है। जब खुदा हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हमारी जिंदगी में ठहराव आ जाता है। जब खुदा हमारी जिंदगी में आता है तो फिर तसल्ली, सुकून, इत्मीनान हमारी जिंदगी में आ जाता है। फिर हम बेचैनगी और ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और इसीलिए मसीह खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हें दावत देता हूँ। या 3 लफ्ज़ से कम टू मी, 3 लफ्ज़, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूँगा। और वो गिफ्ट क्या? कि मैं तुम्हें आराम दूँगा, कि मैं हलीम हूँ और दिल का प्रोतो हूँ, तुम्हारी जानें आराम पाएंगे। इसलिए मसीह खुदावंद ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मैं तुम्हें सुकून दूंगा, मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा, मैं तुम्हें चैन दूंगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में इसीलिए आ गया ताकि वो मुझे और आपको आराम दे। आदम ने गुनाह किया और उसको सजा मिली, और खुदा ने कहा कि तुम मेहनत के साथ काम करेगा, तू जिस्मानी मेहनत के साथ काम करेगा, और तू दुख के साथ काम करेगा, और तू जमीन को जोतेगा, और वो तुझे अपना जो हिस्सा देगी। खुदा ने उसको सजा दी। खुदावंद यीशु मसीह हमें ये खुशखबरी देना चाहता है कि जो उसे कबूल करता है, खुदावंद उस सजा को हमारी जिंदगी से खत्म करता है। और जब हम काम करते हैं तो हम दुखी नहीं होंगे। जिस तरह पहले आदम दुखी होता था, उसकी नस्ल दुखी होती थी, हम शाही कैनों का जब फिरका बन जाएंगे, खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे, तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट खाली नहीं है, तुम पानी पियोगे लेकिन तुम प्यासे नहीं हो। क्योंकि कलाम मुकद्दस कहता है कि खुदावंद कहता है क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया, मैं तुझे अपना इत्मीनान बख्शूंगा, मैं अपनी तसल्ली तुम्हें दूंगा। और तुम मसीह खुदावंद ने यहाँ ये कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों, हम मेहनत करते हैं, हम यहाँ दुख उठाते हैं। यहाँ मसीह खुदावंद का बहकीकत जिस्मानी तौर पर भी तरह जिक्र है कि हम जो मेहनत करते हैं उसमें से खुदा हमें सुकून देता है। जब एक शख्स यीशु को कबूल कर लेता है और जैसे और उसके बाद जो पहले वो यीशु को उससे कबूल नहीं किया और वो मेहनत करता है और वो थक जाता है, दुखी होता है, उसका जिस्म उसे इजाजत नहीं देता। लेकिन जैसे ही आप यीशु को कबूल करते हैं, यीशु पर ईमान लाते हैं, वही मेहनत खुदा आपके ऊपर अपना फजल वाला हाथ बढ़ा देता है और आपको महसूस नहीं होता कि मैं मेहनत की है, क्योंकि खुदा का बेटा आपके साथ है। जब खुदा हमारे साथ है तो उसने कहा कि तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। खुदा मसीह ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि हमें रूहानी तौर पर भी आराम देना चाहता है। हमें जिस्मानी तौर पर भी वो हमें सुकून देना चाहता है, वो रूहानी तौर पर भी जो हमारा ईमान और हमारा जो रास्ता टूट चुका है, जो बेचैनी है, खुदा उसको भी जोड़ना चाहता है। और आपको बाइबल मुकद्दस में मालूम है कि एक औरत तकरीबन 12 वर्ष से एक तकलीफ में मुबतला थी और उसने अपना सारा पैसा गरीबों में, डॉक्टरों में और इन चीज़ों में खर्च कर दिया, लेकिन वो औरत शिफा नहीं पा रही थी। लेकिन कुरान मुकद्दस में लिखा है जैसे ही उसने नीयत बांधी, जैसे ही उसने सोचा कि मैं सिर्फ उससे कहूँगी नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊँगी, उससे मैं उसके आगे सजदा नहीं करूँगी, मैं उससे फरियाद नहीं करूँगी, मैं उसके सामने जाकर ये नहीं कहूँगी, बल्कि उसने ये सोचा कि मैं चुपके से जाकर उसके कपड़े को, उसके चोगे को छूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। कलाम मुकद्दस में ईमान की हमें ऐसी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन कलाम मुकद्दस में हमें बयान करती है और कलाम मुकद्दस में बताती है कि उस औरत के ईमान ने उसको शिफा दी। और कलाम मुकद्दस बताता है कि जैसे यीशु मसीह जा रहा था, भीड़ थी, लोग यीशु के ऊपर गिरे जाते थे, उस औरत का ईमान था कि मैं उसको छूंगी, और जैसे ही जाकर उससे छुआ, यीशु ने कहा मुझसे छूंगी। यीशु हमें बीमारियों से आराम देना चाहता है, वो हमें मुश्किलों से निकालना चाहता है, वो हमें परेशानियों से निकालना चाहता है। वो कहता है, मसीह खुदा कहता है तुम्हारी जिंदगियां आराम पाएंगी क्योंकि मेरा जुआ मैं तुम्हें बरकत देने के लिए, मैं तुम्हें तसल्ली देने के लिए,
मैं तुम्हें आराम देने के लिए आया हूँ। और खुदा मसीह इब्लीस के सारे मंसूबों को से हमें आज़ादी देने के लिए आया। मसीह ना सिर्फ हमें जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर, मुआशी तौर पर भी खुदा हमें डिप्रेशन से और इब्लीस के चुंगल से निकालने के लिए दुनिया में आया। वो मुझे इब्लीस के हाथों से निकाला, उसने अपना खून दिया, उसने अपनी जान दी ताकि मैं और आप तसल्ली पा सकें। आज हम इब्लीस के फर्जंद नहीं हैं, हम गुनाह के फर्जंद नहीं हैं, हम दहशत ज़दा नहीं हैं, हम खौफज़दा नहीं हैं, हम डरे हुए नहीं हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा आज हमारे साथ है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है उसका नाम इम्मानुएल है, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मौत की साई से की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हम किसी भी परेशानी में हो, किसी भी दुख में हो, इत्मीनान तसल्ली खुदा से आती है, इत्मीनान खुशी आसमान से आती है। खुदा अपनी मुट्ठी खोलता है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हम खुशकिस्मत लोग हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। लोग, दूसरे मज़हब के लोग खुदा को तलाश करते हैं, वो जाते हैं दूर जाकर सजदे करते हैं, खुदा को ढूंढते हैं, लेकिन हम खुदा को नहीं ढूंढते। बाइबल मुक़द्दस का खुदा बताता है, मसीहत का खुदा बताता है कि खुदा हम खुदा को नहीं ढूंढते बल्कि खुदा हमें ढूंढता है। कलाम मुक़द्दस में इसका सबूत मिलता है कि शाम के वक्त आदम से खुदा मिलने के लिए आता था, ना कि खुदा आदम को मिलने जाता था। खुदा मुझे और आपको ढूंढ रहा है। और मुकाशवा में लिखा है, देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर तू दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे इत्मीनान दूंगा, मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा, मैं तेरे सारी परेशानियों को अपने ऊपर ले लूंगा, मैं तेरे सारे दुख अपने ऊपर ले लूंगा, मैं अपनी सारी इत्मीनान, अपनी सारी पाकीज़गी, अपना सारा रहम अपने लहू से तुझे पाक कर दूंगा। तू मेरी मानद हो जाएगा और तू बाप के साथ तेरा रिश्ता जुड़ जाएगा। हम सिटीजन बन जाएंगे हेवन के। हमारा मुल्क जो है वो हेवन का है। और इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। अगर मैंने और आपने यीशु को कबूल नहीं किया तो हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं, न पैसे से इत्मीनान आ सकता है, न एजुकेशन से इत्मीनान आ सकता है, न जॉब से आ सकता है। लोग आज स्टैंडर्ड के भूखे हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ये है, लेकिन स्टैंडर्ड से आप बच नहीं सकते, एजुकेशन से आप बच नहीं सकते। बचना है तो यीशु के फजल से बचना है, यीशु के लहू से बचना है, और सिर्फ ये कहना है कि यीशु नासरी तू मेरा खुदावन है, मैं तुझे मानता हूँ, तू मेरा निजात दहिंदा है, तू मेरा बचाने वाला है। और आप देखेंगे जिस दिन आप दिल के बोझ से कहेंगे, भारी बोझ से कहेंगे और इस ईमान के साथ कहेंगे, मेरा ईमान है कि खुदा आसमान को छोड़कर जमीन पर आ जाएगा। सिर्फ आप खुदा मुझ पर रहेगा, क्या खुदा मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरा इत्मीनान चाहिए, मुझे तेरी तसल्ली चाहिए, मुझे तेरा सुकून चाहिए, मुझे तेरा रहम चाहिए। है खुदा मैं मुश्किलों में फंसा हूँ, मैं दुनिया की मुश्किलों में फंसा हूँ। खुदावन तू ही मुझे बचा सकता है, तू ही मुझे निकाल सकता है, तू ही मुझे इन मुश्किलों से निकालेगा। और खुदा अपने लोगों को मुश्किलों से निकालता। और आपको मालूम है कि बनी इस्राएल जब मिस्र से निकले थे, आगे पानी था, पीछे फौज थी, आगे भी मौत थी, पीछे भी मौत थी। लोग घबराए हुए थे कि कहाँ जाएं, आगे जाके तो पानी में मर जाएंगे, पीछे जाएंगे तो फौज मार देगी। वो परेशान थे, अब कहाँ जाएं। उन्होंने रोना शुरू कर दिया, उन्होंने बेचैन हो गए, उनकी जिंदगियों से इत्मीनान खत्म हो गया। उन्होंने मूसा को कहा कि तू हमें कहाँ ले आया, हम तो वहीं पर अच्छे थे, वहीं मर जाते, वही जिंदगी गुजार लेते, गुलामी की बेटे था, तू हमें यहाँ ले आया है, आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है, तूने हमारे साथ क्या किया। और खुदा ने कहा मूसा तू घबराना, तू आगे बढ़। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा बनी इस्राएल के और मूसा के पीछे हो गया और उन्हें वो पुश करना उसने शुरू कर दिया। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा उन्हें पुश कर रहा है और कह रहे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। खुदा ने पानी के हिस्सों को दो हिस्से कर दिया। खुदा अपने लोगों के लिए, इत्मीनान के लिए वो जमीन पर आ जाता है। खुदा ने अपना बेटा दिया। हम खुद किस्मत हो, हम यीशु के माध्यम से। और अगर हमें तजर्बा नहीं हुआ तो फिर हम बदकिस्मत। ये जो यीशु को नहीं जानता वो आसमान में नहीं जा सकता, क्योंकि आसमान में, हेवन में वो ही जाएगा
ये यीशु को जानो। अगर मैं और आप बोर्न अगेन नहीं हैं तो फिर आसमान में नहीं जा सकते। आसमान में वही जाएंगे जिनको नई पैदाइश का तजर्बा हासिल है। तो जैसे ही आप तजर्बा हासिल करते हैं, जैसे ही आप अपने आप को यीशु के हाथ में देते हैं, पाकरू आपके ऊपर नाज़िल हो जाएगा और वो आपके ऊपर नहीं बैठने का मतलब कर देगा। और पाकरू सिर्फ आपको बाहर से गाइड नहीं करेगा, कुरान मुक़द्दस में लिखा है कि वो मेरे अंदर सुकूनत करेगा, खुदा मेरे अंदर आ जाएगा और वो पाक रूह मेरे अंदर जो है वो खुदा की हैकल बना देगा, मैं खुदा की हैकल बन जाऊंगा। लिखा है तुम कीमत से खरीदे हुए हो, तुम खुदा का मक़दस हो, मैं खुदा का मक़दस बन जाऊंगा। अगर मैं यीशु को कबूल करता हूँ तो ये कितनी बड़ी बात है कि खुदा पाक रूह मेरे अंदर आ जाए। वो खुदा है, पाक रूह खुदा है, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, वो खुदा पाक रूह जो है खुदा है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मसीह खुदा ने कहा वो तुम्हारे अंदर सुकूनत करेगा। और पौलुस रसूल कहता है कि तुम खुदा का मक़दस बन जाओ, खुदा की हैकल बन जाओगे जहाँ खुदा रहता है। ये कितना बड़ा इज़ाफ़ा है कि खुदा मेरे अंदर रहता है, लेकिन उस मियार तक, उस हैसियत तक मुझे आना है, इसको कबूल करना है। आपको दुनिया में कोई आराम दे सकता है, सुकून दे सकता है, तसल्ली दे सकता है। और ना सिर्फ आपको इस दुनिया में, हम ये मत सोचें कि इस दुनिया में ही खुदा मुझे परेशानियों से, तकलीफ़ों से, दुखों से परेशानी करेगा। खुदा का वादा है कि मैं तुझे इस ज़िंदगी के बाद भी मैं तेरी हड्डियों को आराम दूँगा, मैं तुझे तसल्ली दूँगा, मैं तुझे सुकून दूँगा, तू मेरे कभी हाथ के नीचे रहेगा। हेवन में भी हम खुदा के कभी हाथ के नीचे रहेंगे। तजर्बा है, समझना है, जानना है। अगर नहीं जानेंगे तो अपनी ज़िंदगी को खुदा से दूर करेंगे। और यहाँ भी मुश्किलें हैं, यहाँ तो मुश्किलें कम नहीं होगी, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। खुदा का बेटा है जो मुझे बचा सकता है। अगर आप कहें कि मेरे पास कोई और है कि यीशु की तरह है तो मुझे बचा सकता है। दुनिया में कोई और ताकत नहीं है, और कोई शख्स नहीं है, कोई और जगह नहीं है, कोई वसीला नहीं है जो आपको बचा सके यीशु के लिए। यीशु की तरह खुदा का बेटा दुनिया में इसीलिए आया कि मुझे और आपको बचाए। वो इसीलिए दुनिया में आया कि वो आपकी परेशानियों को ले, वो आपके दुखों को ले, वो आपके सारे मसलों को अपने ऊपर ले। इसीलिए कहता है ऐ मेरे दुखाने वाला, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। वो कहता परेशान नहीं होना, मैं हूँ, अपने दुख मुझसे दे दो और मेरी खुशियाँ तुम ले लो। मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ और तुम्हारी बेचैनी, बेसुकूनी न ले लेता हूँ। बताओ, ये घाटे का सौदा नहीं है। जिंदा रहना मतलब मरना मेरे लिए नफा, ये नफे की बात है, ये कलाम के भेद की बात है, ये पाक रूह की मामूरी की बात है। जो शख्स मामूर हो गया, खुदा को जान लिया, उससे सब कुछ पा लिया। तो जिसने खुदा को नहीं जाना उससे कुछ नहीं पाना। हम दुआ करें। खुदावंद आसमान की तरह हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू भला है, तेरी वफादारी कुछ तक कुछ रहती है, तो हमेशा हम सब की खताओं को माफ़ करता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं कलाम के लिए, इसके भाई से बरकत बना, हमें तो कीजिए कि हम तेरे नाम कीजिए आने वाले दिनों में तेरे साथ में सब की रहनुमाई कर। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग कलाम को सुनते हैं, सब कलाम को